Good evening. Confirm audio. You have seen the recording of previous sessions. We are going to continue with the topic modulus. We have seen how to plot the modulus graph, how to find maxima minima, work with integer roots. All right. Today we'll cover one additional topic, general graph for x mod plus y mod is equal to k, and general graph for x plus y mod, x minus y mod. Both have been asked in several different exams. So go on, complete this. Plot a rough graph and find maxima minima each. Steps are same. Single variable is there in the mod, only x. All the mods are added. So we have seen 7-8 questions by now of the same type. Horizontal line x, this becomes 0 at 3, this becomes 0 at 6, this is 0 at -4, this is 0 at -8. I will replace -8 in every bracket. This will become 11. This will become 14. This will become +4. This will become 0. So 25 plus 4, 29. On this point, the graph has a height of 29. I will now put x is equal to -4 in all of them. The first one becomes 7. Second one becomes 13. Second one becomes 10. Third becomes 0. And the last becomes 4. 7 plus 10, 17 plus 4, 21. So the height of the graph comes down. The height decreases. 21 is the height at this point. I will put x is equal to 3 in all of them. So 0 plus 3 plus 7 plus 11. That is 21. The height here will be 21. I will put x is equal to 6 in all of them. 3 plus 0 plus 10 plus 40. That is 27. The height is 27. Now you connect them with straight lines. This will be a horizontal line. This will be tilted line up to this point and up to this point. Now what happens? Whenever mods are added, they increase on both sides. It will go up. It will go up on both sides. So if you ask me what is the minimum value, see here the graph is flat. The graph has a height of 21. So 21 is the minimum value of y. If you ask me maximum, see the graph goes upwards. Upwards it can go up to infinity. It can go to infinity upwards. So maximum value of y is infinity. Confirmation on this?
Moving on. Now, I want you to understand in such questions, I would like you to have one additional perspective here. And you'll probably not find this in books. If you have two modulus, x plus a, x plus b, it could be minus a, minus b, does not matter. If you have three, मैं number लेता हूं आपके लिए, let me take numbers for you. If I have x minus 3 mod plus x plus 7 mod, if I have x minus 3 mod plus x plus 4 mod, numbers could be anything, doesn't matter. You have x minus 3 mod, x minus 4 mod, x plus 4 mod, x plus 2 mod. I want you to understand one thing is common. They are all added. All the mods are added. Plus the coefficient is 1. Coefficient has to be 1. These are primary conditions. First, mods must be added. The coefficient must be 1. If that is the case, ये graph कैसा होगा? See, this will become 0 at 3. This will become 0 at 7. तो इनका minimum value 10 होगा. And the graph will go upwards. There are 3 points. There are 3 points of roots here. This will be 0 when it is 3. This will be 0 when it is minus 4. This will be 0 when it is 5. जो middle root है ना, middle root, that will always give you minima. Up graph ऐसा होगा, it will go upwards. Middle root, see there are only two roots. There are only two roots. तो दोनों ही middle है. You take any one of these values or you take any value between these. आप इनके बीच में कोई नंबर ले लो. You take x is equal to 0, तो भी मिनिमा देगा. Because there are 3 points, there are 3 brackets, तो एक यूनिक पॉइंट मिलता है. Look at the fourth one. ये 0 कब होगा? When x is equal to 3. 0 कब होगा? X is equal to 4. ये 0 कब होगा? -4. ये कब होगा 0? -2. तो here what will happen is आपका ऐसा horizontal graph आएगा यहाँ पे between the roots. It will incline a little bit. फिर ये और तेज से भागेगा. It will incline a little bit. और ये और तेज से भागेगा. तो मिनिमा जो होता है is either at the middle root or it is between the two central roots. आप इनके बीच कोई नंबर डाल दो. आप -1 पुट कर दो, ये वैल्यू फिक्स आएगी. आप 0 पुट कर दो, ये वैल्यू फिक्स आएगी. 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ये वैल्यू फिक्स आएगी. Primary conditions, look at that rough graph. Understand this. When the mods are added, इसको लिख लो. Right now I have added one extra slide. अगर मैं इससे next click करूंगा, I cannot come back to it. I cannot see your chats right now. आप पहले इसको लिख लो, अच्छे से ड्रॉ कर लो. मिडिल रूट पे मिनिमा मिलेगा या फिर सेंट्रल रूट्स पे मिनिमा मिलेगा. अगर 4 ब्रैकेट हैं, सेंट्रल रूट्स 2 आएंगे. ये सेंट्रल रूट्स हैं आपके. 3 ब्रैकेट है, एक मिडिल रूट आएगा, सेंट्रल रूट मिडिल. 2 हैं, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी आपको मिनिमा मिलेगा. हर जगह मिनिमा मिलेगा. यू टेक x इज इक्वल टू 1, आपको मिनिमा मिलेगा. x इज इक्वल टू 0, मिनिमा मिलेगा. x इज इक्वल टू -5, मिनिमा मिलेगा. इट इज फिक्स्ड.
Moving on from this. So you can apply same thought process, same approach to this one. ये थोड़ा एडवांस है इन अंडरस्टैंडिंग, मैं ही सॉल्व करता हूं आपके लिए, डोंट वरी. आपको ग्राफ चाहिए. सी हियर व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज दिस इज x माइनस 1 मॉड. यहां पे कोएफिशिएंट 1 नहीं है, बट प्लीज ऑब्जर्व, बट कैन आई राइट दिस एज 2 times? I can write this as 3 times. I can write the next one as 4 times. अब इसका मीनिंग क्या है? ये तो एक ही ब्रैकेट है, एक ही मॉड है. दिस इज नॉट 1 मॉड, इट इज एडिशन ऑफ 2 मॉड्स. ऐसा. ये वाला क्या है? इट इज एडिशन ऑफ 3 मॉड्स. ऐसे 3 मॉड्स हैं आपके पास. So see, it is basically the forceful application of same concept. Mods must be added, check. The coefficient is 1, check. In this manner, the last one will be written 8 times. 1 minus 1 by 8, 8 times. So see, graph, if you want to plot the graph, तो आपका ऐसा 8 point आएगा. This is 0 at 1. This is 0 at 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7 and 1 by 8. These are the root points. ये root point है आपके. ये मिनिमा कहाँ देगा मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ. ग्राफ प्लॉट करने की सेंस बनती नहीं है वैसे भी. What is the central root? देखो, ये रूट 1 बार है, ये रूट 2 बार है, अगला 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार. You have 8 into 9 upon 2, 36 roots. तो अगर 36 रूट्स हैं आपके पास, तो सेंट्रल में कौन सा रूट आएगा? देखो, अप टू दिस पॉइंट कितना एडिशन है? 15. इधर कितना रूट है? 15. तो बीच में आपका 6th रूट आएगा. 36 रूट्स हैं बेटा, हमें बीच का रूट चाहिए, सेंट्रल रूट चाहिए, सेंट्रल. तो आपका ये जो वैल्यू है 1/6, यहां पर आपका मिनिमम आएगा. x is equal to 1/6 will give minimum of all. ये थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा एडवांस है, even for people who have practiced this many times, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बुक्स में मिलते नहीं है, क्लासेस में कवर करते नहीं है, वर्कशॉप के नाम पे मस्ती मजाक हो रहा है, ये होता नहीं है. तो इसको हाईलाइट करो अच्छे से. 2 रूल्स आई टॉट यू. पहला, मॉड्स मस्ट बी एडेड. दूसरा, कोएफिशिएंट मस्ट बी 1. अगर वो है तो सेंट्रल रूट पे आपको मिनिमम मिलेगा. तो सेंट्रल रूट, हाउ डिड वी फाइंड आउट? वी सेड ये 1 बार मॉड है, ये 2 बार मॉड है, ये 1 नहीं, ये 2 मॉड के बराबर है, ये 3 मॉड के बराबर है, ये 4 मॉड के बराबर है, ये 8 मॉड के बराबर. टोटल मॉड्स आर 36. तो सेंट्रल मॉड कौन सा होगा? सेंट्रल मॉड कौन सा होगा? सेंट्रल इज नॉट 5, सेंट्रल इज नॉट 4, सेंट्रल इज 6. 15 मॉड पहले, 15 मॉड बाद में, बीच में ये 6 मॉड आएंगे आपके. तो सेंट्रल रूट आएगा आपका 1/6. आप 1/6 पुट कर दोगे, ये मिनिमम हो जाएगा आपका. Put x is equal to 1/6, this will become minimum. Guys, is the answer clear?
ये कैट का क्वेश्चन है. दिस इज अ कैट क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स 2020 2019 का क्वेश्चन है. आई विल गिव यू 2 minutes. ट्राई सॉल्व करो इसको, आप कोशिश करो. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अटेंडेड मॉड्यूलस 1 and 2 लेक्चर, ये क्वेश्चन 1 minute का भी नहीं है और श्योर शॉर्ट आंसर आएगा आपका. दिस क्वेश्चन इज नॉट इवन वर्थ 1 minute अगर आपने लेक्चर्स दोनों पहले किए हैं तो, मॉड्यूलस 1 and मॉड्यूलस 2. So see, the question is, I need to find distance of this point for this graph. Curve. Curve है नहीं, straight lines है. We'll see. Shortest distance निकालना है. So first you visualize this is x-axis. ये 0 कब होगा? X is equal to 1. ये 0 कब होगा? X is equal to -1. What is the next step? ये -1 दोनों में पुट करना है. Put x is equal to -1 in both. So y becomes 2 plus 0. So height of the graph is 2 units. अभी ये 0 कब होगा? X is equal to 1. So take x is equal to 1 and put it in both. तो आपका हो जाएगा y is equal to 0 plus 2, 2. Because mods are added, तो बाहर की तरफ it will go upwards. We have talked about this many times. और बीच में it will be horizontal. अब ये पॉइंट कहां पर है? ये पॉइंट में x का वैल्यू 1/2 है. x कोऑर्डिनेट इज रिटर्न फर्स्ट और y का वैल्यू 1 है. x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे होगा और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, क्योंकि ये y का हाइट क्या है? 2. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? ये आपका पॉइंट है 1/2, 1. ये पॉइंट है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? y का टोटल हाइट 2, इसका अपना हाइट 1, तो डिस्टेंस इज 1 यूनिट. फिर आपका आंसर. So this question is worth 1 minute, not more. अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन सारे किए हैं तो, इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं तो. दिस इज द पॉइंट. ये आपका पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच यू आर फाइंडिंग डिस्टेंस. ये पॉइंट है आपका. तो ग्राफ का अपना हाइट 2 यूनिट्स है, इसका अपना हाइट 1 यूनिट है, तो इसमें डिस्टेंस कितना बचेगा? ये the gap will be 1 unit. That is this distance of the point from the graph. अब हम कैसे माने ये शॉर्टेस्ट है? नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. नो. All right, moving on from this. Moving on. Try this. Find the number of integral values for x for which this is true. We have seen inequalities. कभी भी मॉड्यूलस लेस देन नंबर होता है तो वी ओपन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये हमने कवर किया अर्लियर थियोरी में. व्हेन मॉड्यूलस इज मोर देन अ कांस्टेंट, we open x more than positive, x less than negative. ये भी हमने कवर किया. There are
टू इनइक्वालिटीज फॉर अ सिंगल मॉड्यूलस. देख लो आप, या सिंगल मॉड्यूलस है. सो टेक 2 minutes, ट्राई कंप्लीट दिस. सो फर्स्ट स्टेप विल बी लॉजिकली, आप केवल बाहर का मॉड्यूलस ओपन करो. इफ यू ओपन द आउटसाइड मॉड्यूलस, you will have this kind of representation. Now ये 7 कैंसिल करना है. Add 7 to every value. आप 7 ऐड कर दो, this becomes 1, this becomes 13. अब प्रॉब्लम है, you are looking at two separate inequalities. मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. I am solving this part only. This part only. 2x minus 9 is less than 13 is more than minus 13. मैं 9 को ऐड कर दे रहा हूं. -4 2x 22. मैं 2 को डिवाइड कर दे रहा हूं. दिस इज द रेंज फॉर x. रेंज फॉर x. लीव इट देयर, इसको रहने दो यहां पे. नाउ व्हेन यू हैव 1 लेस देन, ये इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं. इसको आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट. देखो जब पॉजिटिव होता है तो इट इज मोर देन पॉजिटिव, लेस देन नेगेटिव. 2x माइनस 9 इससे बड़ा आएगा. इसको इधर भेज दिया हमने. दिस बिकम्स 10. 10 इज लेस देन 2x. 2 से डिवाइड कर दिया. 5 is less than x. Second part will be 2x minus 9 is less than -1. इसको इधर भेज दिया. 2x is less than 8. x is less than 4. अब हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे कैसे? हाउ विल वी फाइंड सॉल्यूशंस? हमारे पास अलग अलग दो रेंजेस है. फर्स्ट वन सेज, पहला वाला कह रहा है 11 और -2 के बीच में सारे नंबर ले लो. ऑल नंबर्स बिटवीन 11 एंड -2. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 4 से नीचे नंबर्स लो. 4 से नीचे काउंट करो. और ये कहता है 5 से ऊपर काउंट करो. तो बेटा कॉमन ओवरलैप क्या होगा? फ्रॉम 5 to 11. 5 और 11 काउंट नहीं करने, उनके बीच में गिनना है. तो आपको ये भी सिखाया है अपर और लोअर लिमिट काउंट नहीं होता. तो ये होता है उनका डिफरेंस -1. इनका डिफरेंस -1. देयर आर 5 नंबर्स. अब ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, दोनों काउंट नहीं करना है. तो इंटीजर्स होंगे अपर माइनस लोअर -1 विच इज 5. तो यहां पर 5 नंबर्स हैं और यहां पर 5 नंबर्स हैं. टोटल नंबर्स आर 10. ये कैट लेवल है. दिस इज कैट लेवल. टेक योर टाइम. व्हाट लॉजिक हैव वी अप्लाइड? ये राइट साइड में आपके सामने रूल लिखा हुआ है. दिस इज द रूल ऑफ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी कंसर्निंग मॉड्यूलस. मॉड्यूलस बेस इनइक्वालिटी लिखी हुई है यहां पे.
Should I repeat any part of this? Moving on. Yeah, try this. How many values of x satisfy this inequality? How many values of x satisfy this inequality? Now you don't have a single bracket, you have three modulus you have. So in this kind of question, you can start with the graph. You can start by replacing values of x. The best is graph approach. Forget there is 9. Forget there is 9. Imagine it is equal to y. This will be opened. This will be 0 at -3. This will be 0 at +1. This will be 0 at +3. Same step. Replace x is equal to -3 in all of them. What will y become? The first part becomes 0. Second part, -3 -1, -4. Modulus 4. -3 -3, -6. Modulus 6. This is 10. At this point, the graph has achieved a height of 10. Put x is equal to 1 in all of them. The first one becomes 4. Second one becomes 0. And the third one becomes -2. Modulus 2. 6. At this point, the height has become 6. Put x is equal to +3 in all of them. First one is 0. Second one is +2. And the last one is 0. That is 8. That is 8 somewhere here. Now your graph will be straight lines. This will be a straight line. This will be a straight line. It will increase on both sides. It will increase here. It will increase here. Now you need to observe where will the graph cross 9. This is 9. This is 9. I want the graph to cross 9. Here, somewhere here, the graph will reach the value of 9. So I'm on the right side. So now you have to solve. On the right side, all three brackets open without a change. This plus this plus this is 3x. 3 minus 1 minus 3 is -1. I want to go up to 9. So
x will be less than equal to 10/3. That is the upper limit of x. यहाँ पे furthermore you see यहाँ कहीं पे this is the height 10, this is the height 9. यहाँ कहीं पे graph will cross 9. अभी careful, x का वैल्यू इधर आएगा, ये लेफ्ट साइड पे, इन दोनों के लेफ्ट साइड पे है. So what will happen on the left side? ये वाला और ये वाला मॉड्यूलस will open negative. On the left side modulus opens negative. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. We discussed everything of this nature. रूट के लेफ्ट में नेगेटिव ओपन होगा और अभी ये वाला पॉइंट इसके राइट साइड में, दिस विल ओपन पॉजिटिव. हमको ये सब क्या चाहिए? हमें 9 से कम चाहिए ये. सो दिस बिकम्स x माइनस एक्स. ये x और माइनस कट जाएगा. 3 + 1, this will become 3 + 1 minus x plus 3 less than equal to 9. तो कितना होगा? 3 + 3, 3 + 3 6 + 1 7, यहां चला जाएगा 2. क्या लिखता हूं मैं? माइनस एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज मोर देन -2. आपके सामने क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, बेसिकली हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस. एक्स का जो वैल्यू है वो -2 से ज्यादा है और 10/3 से कम है. 10/3 से कम है तो बहुत वैल्यूज है बीच में. तो यहाँ पे 10/3 क्या होता है? 3.33. 3.33 से कम क्या होगा? 3. तो -2 से लेके 3 तक ये सारे वैल्यूज ट्रू है. तो देयर आर 6 वैल्यूज. देयर आर 6 वैल्यूज ऑफ एक्स. वो ग्राफ प्लॉट करके हमें क्या मिला? नहीं बेटा, वो -2x और x कट जाएगा ना. ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा ना. ये और ये. क्या what is the point of प्लॉटिंग द ग्राफ? ग्राफ प्लॉट करके एक आइडिया मिल जाता है कि ग्राफ में वैल्यू कहां तक जा रही है. हमें 9 तक जाना था. अदरवाइज अगर आप ग्राफ नहीं प्लॉट करोगे ना तो देर इज 1 रीजन, 2, 3 एंड 4. 4 रीजन में 4 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है आपको. 4 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है. दैट इज वाई बाय प्लॉटिंग ग्राफ आप केवल 2 इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो. Guys, confirmation on the solution. रूट पॉइंट के लेफ्ट साइड में यू विल हैव नेगेटिव मॉड्स. रूट पॉइंट के राइट साइड में यू विल हैव पॉजिटिव मॉड्स. Everyone confirm?
चलो try this. What is maximum value of this in this range? तो हमने सीखा है, वी हैव सीन मॉड्यूलस जब लगाते हैं ग्राफ पे तो हाउ डज द ग्राफ वर्क. मैंने आपको दो तरह के शिफ्टिंग सिखाए थे. एक जब प्लस माइनस करते हैं मॉड्यूलस के अंदर में और मॉड्यूलस के बाहर में प्लस माइनस करते हैं, ये एक तरह का शिफ्टिंग था. दूसरा था जब हम x के ऊपर मॉड लगाते हैं या फिर fx के ऊपर मॉड लगाते हैं. एक्सक्यूज मी. तो ये पैटर्न आपने देखे हुए हैं. पहले आप इस ग्राफ के बारे में सोचो, ये ग्राफ कैसा होगा और इस रेंज में मैक्सिमा मिनिमा कैसे मिलेगा. ये भी जरूरी नहीं है कि इंटीजर पे मिले, ये सारे इंटीजर वैल्यूज हैं x के जो आपको चेक करने चाहिए. लेकिन ये भी तो हो सकता है ना मैक्सिमम मिनिमा 1/2 पे आ जाए, 3/4 पे आ जाए. Excuse me. Give it a try. कपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस. देखो सब में क्या कॉमन है, 3. बाहर निकाल दो. मैंने आपको पहले भी एक बार सिखाया था कि कभी अगर a माइनस एक्स हो मॉड में या x माइनस ए हो, दे आर सेम, दे आर बोथ सेम. अंदर में आप साइन पलट सकते हो इक्वेशंस का. मैं इस पूरे का साइन पलट के चेंज कर दे रहा हूं. आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. अब ये ग्राफ कैसा होगा, ये होता है अपवर्ड ग्राफ. अगर अगर इसके रूट रियल होते तो ग्राफ ऐसा होता. आपने क्या लगा दिया, मॉड्यूलस. मॉड्यूलस तो मॉड्यूलस की वजह से व्हाट हैपेंस इज, ये जो नीचे का हिस्सा होता है, दिस लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ, दिस डज नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि ग्राफ नेगेटिव नहीं जाएगा, ये वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा. तो बेटा ये है आपके ग्राफ का मैक्सिमा. ये कब मिलता है, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस b/2a. आपको केवल ये चेक करना है, इज दिस वैल्यू विद इन दिस रेंज. तो लोग एल्जेब्रा से क्यों डरते हैं, एक तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता मॉड्यूलस लगाने से क्या होगा. दूसरा कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिलता है, -b/2a. ये दोनों कंबाइन होंगे तो आंसर आएगा. इनमें से अगर आपको कॉन्सेप्ट कोई एक नहीं पता, सवाल नहीं बनेगा. दोनों नहीं पता, स्कोप ही नहीं है. तो यहां पर देखो -b by 2a which is 3/2. 3/2 जो वैल्यू है, ये पुट करने पे आपको मैक्सिमा मिलेगा. ये रहा. इस 3/2 विद इन दिस रेंज. देखो 3/2 इस रेंज में आता है क्या, 3/2 मीन्स 1.5. अब पुट कर दो 1.5 इसमें, पुट 3/2. ये 3 बाहर है, यहां पुट करो 3/2, 9/4. पुट 3/2 -9/4. पुट 10, ये तो माइनस है, -10. ये आपका आंसर है. 3 इंटू ये, इसका एलसीएम ले लो आप. 4 आ गया एलसीएम इसका,
ये ऊपर चला जाएगा 9 -18 -40 और मॉड लग जाएगा बाहर से। ये आपका आंसर है, दिस इज आंसर। ये हो गया हमारे पास 58, 58 - 9, 49/4। सो 3 इंटू 49/4, 147/4, ये आपका आंसर है। दो चीजें, आई विल रिपीट दैट वन मोर टाइम। पहला, फर्स्ट थिंग, पूरे ग्राफ पे मॉडुलस लगाने से नेगेटिव पार्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट बिकम्स पॉजिटिव। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, इट इज अचीव्ड व्हेन x इज इक्वल टू -b/2a। तो -b/2a क्या है यहाँ पे? 3/2। केवल आपको ये कंफर्म करना है 3/2 का जो वैल्यू है इस रेंज में है कि नहीं। इस रेंज में है तो यू हैव गॉट योर मैक्सिमम। Confirmation on this, guys? क्लियर है? ऐसे वालों में आई कैन अगेन स्टार्ट विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थियोरी। क्या होता है जब मॉड्यूलस प्लस माइनस होते हैं? ये करने से अच्छा है इस तरह के क्वेश्चंस में आप दो चार वैल्यू पुट करके चेक कर लो। आई विल गिव यू 2 minutes, टेक सम टाइम, पुट वैल्यूज इन, चेक, गो ऑन, गिव इट अ ट्राई।
देखो, द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन आर सेम सेम थिंग। एक्स का वैल्यू 1 और -1 के बीच में कभी बराबर नहीं होगा, और y का वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में कभी बराबर नहीं होगा। तो इजिएस्ट वैल्यू इज 0। मैंने अगर यहां पर 0 पुट कर दिया दोनों को, तो पहला वाला 1 बन गया, ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। अब इज 1 इक्वल टू 0? नो। यहां पे ट्राई किया, 1 प्लस 0, 0 प्लस 0। इज 1 मोर देन 0? यस। यहां पे ट्राई किया, यहां पे ट्राई किया, 1 माइनस 0, 0 प्लस 0। इज इट मोर? यस। इनमें से आंसर हो सकता है, और आंसर कैन बी नन ऑफ दिस। तीनों पॉसिबल है। अब दो चीज चेक करो, एक बार दोनों को पॉजिटिव ले लो, और एक बार एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लो। इफ आई टेक बोथ पॉजिटिव, यहां पे ध्यान दो, इफ आई टेक बोथ पॉजिटिव, 1 प्लस, ये हो गया 1/2, 1/2, 1/4, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, 1। इज इट मोर? यस। मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया। इफ आई पुट इट हियर, 1 माइनस 1/4, यहां रखा मैंने 1/2, 1/2, दोनों प्लस करके बन जाएगा 1। इज इट मोर? नो। तो ये बाहर हो गया। तो आंसर या तो ये है, आंसर या तो ये है। अब एक बार इसको चेक कर लो, एक बार इसको चेक कर लो। इफ आई पुट दैट वैल्यू हियर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल हैव -1/4। यहां पे रखूंगा 1/2, 1/2, तो 0 बन जाएगा। इज दिस मोर देन 0? यस, यस इट इज मोर देन 0। तो ये आपका आंसर है। आपने हर पॉसिबिलिटी चेक कर लिया, दोनों पॉजिटिव, दोनों 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है बेटा, देखो आप, 1 minus 1/4 is not more than 1 when I take one positive and one negative value। अरे फिर उल्टा है रे बाबा, उल्टा है। एक अगर आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, ये देखो, अगर आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया यहां पे, नहीं ना, देखो दोनों पॉजिटिव में आपका सी रिजेक्ट हो गया, बोथ पॉजिटिव में आपका सी रिजेक्ट हो गया ना। नहीं बेटा, एक बार रिजेक्ट हो गया दोबारा क्यों चेक करोगे? वाई विल यू चेक दैट? अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो इट मस्ट बी यूनिवर्सली ट्रू, हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर एक बार भी रिजेक्ट हो गया, इट इज गॉन। It must be universally true, always true. या तो यहां पे आपको बहुत सारी थ्योरी करवाएंगे। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल सी इन मॉक्स बुक्स। इसमें एरिया क्या है क्वेश्चंस आते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी सब देखेंगे, इंटीजर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, इंटीजर पॉइंट्स इनसाइड द ग्राफ इंक्लूडिंग बाउंड्री। ये आखिर वाला थोड़ा एडवांस होता है, और इन सबको आंसर करने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। देयर आर 4 पार्ट्स टू इट।
मैं एज अ थ्योरी सिखाऊंगा आपको. आई विल कवर दिस एज थ्योरी. लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले तो ना मैं आपको जनरल वे सिखाता हूँ इसको प्लॉट करने का. देयर इज वन की रिक्वायरमेंट. जो एक्स और वाई के कोइफिशिएंट हैं वो बराबर होने चाहिए. द डिफरेंस इज प्लस माइनस. अगर x के सामने 2x है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2x होना जरूरी है. अगर y के सामने माइनस वाई है तो यहाँ पर प्लस वाई होगा. द डिफरेंस इज इन द साइन ऑफ y. दैट इज द की रिक्वायरमेंट. तो ये प्लॉट कैसे होता है? सबसे पहले मैं आपको सीधे डायग्राम सिखाता हूं. x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो यू विल हैव y मॉड प्लस y मॉड इज इक्वल टू 8. y मॉड इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. सिमिलरली y को 0 कर दो इनमें. यू हैव x मॉड प्लस x मॉड is equal to 8. X mod is equal to 4. X is equal to plus minus 4. इसका जो ग्राफ है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ये इंटरसेप्ट बोलते हैं इनको, इंटरसेप्ट. y का इंटरसेप्ट है +4 पे, -4 पे. x का इंटरसेप्ट है +4 पे और -4 पे. तो ये जो आपका ग्राफ होता है, इट इज मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस. ऐसा ग्राफ बनेगा आपका. It's a graph made of straight lines parallel to axis. ऐसा ग्राफ बनेगा आपका. ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 4, -4. ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 4, 4. ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? -4, 4. ये कौन सा है? -4, -4. टेक योर टाइम, ऑब्जर्व. तो एक बार आपको ग्राफ मिल गया, यू कैन फाइंड द एरिया. अब आपको ये समझना है व्हाट इज द डायमेंशन. ये आपका 8 यूनिट का लेंथ है, ये आपका 8 यूनिट का लेंथ है. इट इज अ स्क्वायर, सो द एरिया विल बी 8 स्क्वायर. तो लोगों ने फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर लिया. इफ दिस वाज x माइनस वाई मॉड प्लस प्लस x प्लस वाई मॉड, ऐसा रहेगा, इज इक्वल टू k. तो इसका एरिया विल बी k स्क्वायर. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो. इंटरसेप्ट कैसे निकाले? वर्डिंग क्या थी? द कोएफिशिएंट ऑफ x इन बोथ शुड बी सेम, y शुड बी सेम. प्लस माइनस का फर्क रहता है बस.
अभी सेकंड क्या है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन। तो इसके लिए आपको डायगोनल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट लाइन इज द डायगोनल। तो डायगोनल का तो फॉर्मूला बना होता है, अगर साइड एक्स और एक्स है तो डायगोनल इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू एक्स। तो अगर ये k है तो डायगोनल इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू k। टेक योर टाइम, ऑब्जर्व, रटना नहीं है, रटना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। फॉर्मूला लिख लो। हाउ मेनी इंटेजर पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर इंटेजर पॉइंट्स कितने हैं। तो आपको थोड़ा ये प्लस माइनस सीखना, तो ध्यान दो। x इज इक्वल टू शुरू कहां से हुआ, 4 से। y इज इक्वल टू 4 से। मैं वर्टिकली अगर देखूं तो ये खत्म कहां हो रहा है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -4। तो यहां से लेके यहां तक देर आर 9 पॉइंट्स। तो आप देखो, यहां पर भी 9 पॉइंट्स होंगे, यहां पर भी 9 पॉइंट्स होंगे, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, हर जगह पे 9 पॉइंट्स होंगे। लेकिन जो कॉर्नर है, कॉर्नर कॉर्नर ये दो दो बार काउंट हो गया ना। जैसे आपने अगर इनको 9 पॉइंट्स गिना, इन सबको 9 पॉइंट्स गिना आपने, जब हॉरिजॉन्टली गिनोगे तो ये कॉर्नर दूसरी बार काउंट हो गया ना, कि एक और बार, एक और बार। तो हर एक कॉर्नर दो दो बार काउंट हो गया। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द लाइन, 4 इंटू 9 -4, तो 4 इंटू 8। ये यूनिवर्सल है बेटा। इस तरह के सवाल में अगर स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, कोएफिशिएंट 1 1 है, तो हमेशा 4k पॉइंट्स आते हैं इस पे, 4k पॉइंट्स, 4k पॉइंट्स। अभी अंदर कितने पॉइंट्स हैं, व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन से, हाउ मेनी पॉइंट्स लाई विद इन द ग्राफ इंक्लूडिंग द बाउंड्री। इसके लिए थोड़ा सा आप फोकस करो। ये जो खुद एक लाइन है, ये जो खुद एक लाइन है, इस पे 9 पॉइंट्स हैं। अब जब मैं अंदर जाऊंगा, मैं x की वैल्यू को 3 लूंगा, 3, तो बेटा उस पे भी तो 9 पॉइंट्स आएंगे ना ऐसे। x इज इक्वल टू 3 लेने पे, x इज इक्वल टू जब 2 लेंगे तो भी 9 पॉइंट्स आएंगे, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो भी 9 पॉइंट्स आएंगे, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो भी 9 पॉइंट्स आएंगे। देखो, x के 9 वैल्यूज हैं और y के भी 9 वैल्यूज हैं, तो टोटल वैल्यूज आएंगे 9 इंटू 9, 81। अगर आपको बाउंड्री लेके अंदर तक गिनना है सारे पॉइंट्स, तो ये 9 बाय 9 की ग्रिड बनेगी। ये जो नीचे की लाइन है, इस पे 9 पॉइंट्स है, 2 4 6 8 9। ऊपर वाले एक एक कदम ऊपर जाओगे, उस पे भी 9 पॉइंट्स है। जैसे 9 बाय 9 का आपका ग्रिड बनेगा। तो अगर आपको सारे पॉइंट्स गिनने हैं, इट इज 9 बाय 9, 81 पॉइंट्स। इसका फॉर्मूला अगर आप बनाना ही चाहते हो तो k+1 स्क्वायर पॉइंट्स हैं। मैं चाहूंगा आप मेथड भी सीखो इन चीजों के लिए, सो इन फ्यूचर थोड़ा अगर चेंज होता है तो यू कैन मैन्युअली काउंट दीज थिंग्स। देर आर 81 पॉइंट्स on the boundary including the inner part.
इसका एक और वेरिएशन है. एवरीवन कंफर्म दिस इज क्लियर? इस पर्टिकुलर केस में 1, इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको ये सारे फॉर्मूले यूज करने हैं के स्क्वायर, अदरवाइज अगर आपको केवल सॉल्व करना है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, अभी आगे है आपकी शीट में 2x माइनस 3y प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लो 12 आ जाए, तो सॉल्विंग का मेथड यही है, पहले x का इंटरसेप्ट निकालो, y का इंटरसेप्ट निकालो, फिर ग्राफ ड्रॉ करो, फिर सारे आंसर्स आएंगे. अभी आपका अगर कोइफिशिएंट सेम है 1 और 1, तो ये चारों फॉर्मूले काम करेंगे. एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर, डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2k, इंटीजर पॉइंट्स इज इक्वल टू 4k, पॉइंट्स इनसाइड द बाउंड्री काउंटिंग द बाउंड्री इज k प्लस 1 स्क्वायर. ये इस वाले केस में फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो. कोइफिशिएंट अगर चेंज होगा, मैं भी आपको कराता हूँ क्वेश्चन वैसे वाले भी, डोंट वरी. जैसे यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने एक स्लाइड एक्स्ट्रा बनाई थी, अगर और स्पेस लगता तो. अभी जैसे ये आ गया आपके सामने ये आ गया आपके सामने, बिल्कुल सेम अप्रोच. आप x को 0 कर दो. पहली बात तो 2x सेम है, 3y सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, तो अप्रोच सेम है. x इज इक्वल टू 0 कर दो, तो आपका आ गया 3y प्लस 3y मतलब 6 मॉड y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. y को 0 कर दो, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 2x, 4 मॉड x 24, x is equal to plus minus 6. तो पहला पार्ट इज सेम, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. इंटरसेप्ट मिले आपको, इंटरसेप्ट y का इंटरसेप्ट कहाँ है, +4 पे है और -4 पे है. x का इंटरसेप्ट है +6 पे और -6 पे. अब आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने एक्सिस के, तो ये आपका ऐसा लाइन आएगा, ऐसा लाइन आएगा, ऐसा. तो इस केस में इट इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल. ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ 8 है लेंथ, और ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ 12 है. तो व्हाट इज द एरिया, 12 इंटू 8, 96. डन. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डायगोनल होगा. तो हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो जो हाइपोटेनियस है वो डायगोनल है, ये इसका क्या होगा, डायगोनल इज इक्वल टू रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना. 144 प्लस 64, 208. ये डायगोनल की लेंथ मिल गई आपको. ना थोड़ा संभल के, हाउ मेनी इंटेजर पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे पॉइंट कितने हैं. तो देखो ये शुरू कहां से हुआ, ये y इज इक्वल टू 4 से शुरू हुआ, ये कहां तक गया, y इज इक्वल टू -4 तक गया. तो इस लाइन पे 9 पॉइंट्स हैं, वैसे ही इस लाइन पे भी कितने पॉइंट्स होंगे, 9 पॉइंट्स होंगे. ये कहां से शुरू हुआ, x इज इक्वल टू 6 से, और ये कहां तक गया, ये गया x इज इक्वल टू -6 तक. तो इस पे कितने पॉइंट होंगे, 13 पॉइंट्स होंगे. ऊपर भी कितने पॉइंट्स होंगे, 13 पॉइंट्स होंगे. लेकिन ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपने दो दो बार गिन लिए ना, तो आप -4 कर देना आखिरी में, ये ध्यान रखना जरूरी है. 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 26 44 -4. तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 40 पॉइंट्स आर देयर ऑन द ग्राफ. अब
पॉइंट्स इनसाइड द बाउंड्री और इंक्लूडिंग बाउंड्री तो बहुत आसान है, क्योंकि इस लाइन पे 9 पॉइंट्स हैं। इस लाइन पे मतलब मेरे पास y की 9 वैल्यूज है। वैसे ही यहां पर अगले पे भी 9 वैल्यूज होंगे, अगले पे भी 9 वैल्यूज होंगे, अगले पे भी 9 वैल्यूज होंगे, ये चलता जाएगा। x के कितने वैल्यूज हैं? x के 13 वैल्यूज हैं, 6 2 -6, तो टोटल पॉइंट्स आर 13 into 9। तो ये हो गया आपका 7 कैरिड ओवर 3, 127 पॉइंट्स। 127 तो प्राइम होता है, मिस्टेक कर रहे हैं अपन। 117 पॉइंट्स, 117 पॉइंट्स, ये आपका आंसर है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इनसाइड द बाउंड्री इंक्लूडिंग द बाउंड्री? 117। अप्रोच आइडेंटिकल है। सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालो, इंटरसेप्ट निकाल के ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू एक्स वाई एक्सिस। पैरेलल लाइन टू एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है आपको सबसे पहले, फिर आपके सारे आंसर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। एरिया मिल गया, एरिया के बाद क्या मिल गया हमें? इंटीजर पॉइंट्स मिल गए। गाइस टेक योर टाइम, कंफर्म। -4 क्यों कर रहे हैं ये समझा आपको? वाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम दिस? आपने जब ये वाली लाइन के पॉइंट गिने और आपने जब ये वाली लाइन के पॉइंट गिने, ये 2 बार काउंट हो गया आपका। तो 4 कोने 2 बार काउंटर, तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा आपको। Confirmation on this? तो ये सेम क्वेश्चन के लिए एक स्लाइड एक्स्ट्रा रखी थी मैंने। अब पिछले वाले में क्या था? x एंड y वर टुगेदर इन द मॉड्यूलस, x एंड y वर टुगेदर। अभी x एंड y क्या इंडिविजुअल मॉड्स में है, जो थोड़ा अलग बनता है। इसके भी दोनों वेरिएशंस हैं। वेरी गुड। तो हर तरह के सवाल आपको सीखने देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। इसे कैसे बनाते हैं? सेम अप्रोच, x इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपका y मॉड इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू +-8। y is equal to 0 gives you x mod is equal to 8, x is equal to +-8। y axis, x axis। अब इसमें एक चीज अलग है, सुनो।
इसके इंटरसेप्ट यू हैव फाउंड आउट एज +8 -8, ये इंटरसेप्ट आपने निकाल लिए। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन से नहीं बनता है, ये स्लैंट लाइन से बनता है। क्योंकि देखो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, इन क्वाड्रेंट 1 दे आर बोथ पॉजिटिव। तो आप x मॉड प्लस एक्स प्लस वाई बनेगा आपका इज इक्वल टू 8। इट्स अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्लैंट, ऐसा। तो अब इसको रेप्लिकेट करना है आपको हर क्वाड्रेंट में, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये आपको लग रोम्बस रहा होगा, ये रोम्बस नहीं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो एरिया अगर आपको चाहिए तो आप 4 ट्रायंगल निकाल के एरिया निकाल दो। एरिया क्या होगा, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 8 इंटू 8, ये एक हिस्से का एरिया हुआ, ये 1 पार्ट का एरिया, ऐसे 4 पार्ट्स हैं इंटू 4। तो आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो यूनिवर्सल। इसका जो एरिया रहेगा इट विल बी 2 इंटू 8 स्क्वायर, अगर ये के बराबर है तो 2k²। ये यूनिवर्सली ट्रू है अगर कोएफिशिएंट दोनों में 1 है तो। इफ द कोएफिशिएंट इज 1 इट इज यूनिवर्सली ट्रू। आपको अगर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन थी, यही तो लॉन्गेस्ट लाइन है, दिस इज इक्वल टू 16 और 2k। देखो रटना नहीं है, प्लॉट होता है 2 सेकंड में प्लॉट होता है, कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ, ग्राफ के ऊपर पॉइंट कितने, इसका मैं डेरिवेशन करके आपको दिखाऊंगा। तो राइट साइड में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x अगर 0 है तो y 8 है, x 1 है तो y 7 है, x 2 है तो y 6 है, ये चलता जाएगा। x 8 है तो y 0। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, किसी भी एक को पकड़ लो, 8 से लेके 0, देयर आर 9 पॉइंट्स। अब इस लाइन के ऊपर 9 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर 9 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर 9 पॉइंट्स है और 9 पॉइंट्स हैं। तो टोटल पॉइंट्स हो गए 4 इंटू 9। लेकिन ये जो कॉर्नर है ये फिर आपने दो दो बार गिन लिए, तो -4 आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36 - 4, 32 पॉइंट्स आर देयर। तो एज ए यूनिवर्सली आपको ये 8 इंटू 4 या 4 इंटू k बन के मिलेगा। ठीक है टाइम, यहां तक का आप नीटली सॉल्व कर लो, लिख लो। अब इसको ना कैट के पहले 2-3 बार रिपीट करना है आपको, 2-3 बार रिवाइज करना है, तो ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट बनेंगे, आउटपुट सही आएगा। जो सेकंड वाला है वो मुझे थोड़ा डिराइव करके देना पड़ेगा आपको।
चलो, इसके बाद वाला थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, हाउ टू काउंट पॉइंट्स इनसाइड। थोड़ा एक बार आप डिटेल ग्राफ देखो, थोड़ा ग्राफ मैं बड़ा बनाता हूं। पिछले वाले में क्या था, इट वाज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो अगर यहां पर 9 पॉइंट्स हैं और मान लो यहां पर अगर 12 पॉइंट्स हैं, तो 9 इंटू 12 से आपको पूरे एरिया के पॉइंट मिल जाते। ये स्ट्रेट ग्राफ नहीं है, थोड़ा टिल्टेड ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ऐसा। तो मैं आपको दो तरीकों से समझाता हूं। व्हेन यू से हमें अंदर के पॉइंट भी चाहिए, तो यू आर बेसिकली सेइंग दिस, x mod plus y mod is less than equal to 8, you are saying this। तो इसको आप ऐसे इमेजिन करो, अगर लेस देन इक्वल टू 8 है तो ये 8 के बराबर हो सकता है, ये 7 के बराबर हो सकता है ना। आपने कहा लेस देन 8, और अगर इंटीजर निकाल रहे हैं, इंटीजर, तो इंटीजर ही आएगा एडिशन, 6 5 1 0। देखो, व्हेन यू इमेजिन ये 8 के बराबर है, तो पॉइंट्स आर 4 इंटू 8। आप जब इसको 7 के बराबर मानोगे, तो पॉइंट्स विल बी 4 इंटू 7, 4 इंटू 6, 4 इंटू 5। ये बेसिकली क्या है, ये 8 बाय 8 का ग्राफ है। इसके अंदर में 7 बाय 7 बन सकता है ना एक। ये सारे पॉइंट इंटीजर्स होंगे। एक और कौन सा बन सकता है, 6 बाय 6 तो इट्स अ सिमेट्रिक काइंड ऑफ ग्राफ इनसाइड एज वेल। ये कहां तक चलेगा, आप जब 1 बाय 1 पे आओगे, ये 1 बाय 1 का ग्राफ है। इसमें भी कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। ये 1 बाय 1 ग्राफ का 4 पॉइंट है। लेकिन जब आप ओरिजिन पे जाओगे, ओरिजिन पे आप जाओगे, तो ओरिजिन तो सिंगुलर पॉइंट है, 4 थोड़ी है। तो व्हेन यू हैव x मॉड प्लस y मॉड इज इक्वल टू 0, तो ये सिंगुलर पॉइंट है बेटा। ये थोड़ा सा आप ध्यान देना। ये आपका आंसर, ये आपका पैटर्न है। इसको फॉर्मूले में आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज पॉइंट गिनना सीखो। व्हाट डज इट मीन कि पॉइंट अंदर चाहिए हमें। आप कह रहे हो अगर ये 8 के बराबर है तो बाउंड्री, व्हेन दिस इज इक्वल टू 8 तो इट इज बाउंड्री। जब ये 7 के बराबर है तो आप अंदर चले गए, 6 के बराबर, मतलब 6 की बाउंड्री यहाँ पे। ये 6 बाय 6 के पॉइंट है, 6 प्लस 6 -6 तो हर बार 4 गुना पॉइंट्स आते हैं। ये मैंने ड्राइव करके दिखाया था आपको 2 मिनट पहले। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 8 इंटू 9/2 प्लस 1, कैंसिल कैंसिल 4, 36 इंटू 4, 144 प्लस 1, 145 पॉइंट्स आर देयर। 145 points are there, including the graph and inside the graph. ठीक है, टाइम समझा कि नहीं समझा? बेटा वो सब काउंट कर लिया आपने, हमने। जो कॉर्नर वाले पॉइंट है वो डबल काउंट हो रहे हैं। आपको अगर ना इसको मैन्युअली समझना है ना, इफ यू वांट टू डू दिस मैन्युअली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं कह रहा हूं आप ऐसा कर लो, अगर आपके पास x मॉड प्लस y मॉड इज इक्वल टू 2 होता, और आपसे कहते काउंट ऑल द पॉइंट इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री। देखो,
तो 2/2 का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पर होगा, एक यहां पर, एक यहां पर, ऐसा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। तो मैन्युअली गिन लो, ये हो गए 3, ये हो गए 3, 6 और ये 2 हो गए 8। तो 4 इंटू 2 आ गया 8 पॉइंट। अगला जब 1/1 होगा बेटा, अगला जब 1/1 होगा, ऐसा 1/1, ये ये, तो ये 4 पॉइंट हुए ना, और ये बीच में सेंट्रल पॉइंट है। आपको दिख रहा है 4 इंटू 2 +1 +1, ये कौन से पॉइंट है? 2 2 -2 -2, ये कौन से पॉइंट है? 1 1 -1 -1, और ये ओरिजिन है। ये +1 किसके लिए? ये ओरिजिन के लिए है। टेक योर टाइम, ड्रॉ दिस, कंफर्म ये क्लियर हुआ? Moving away. So, अब we have changed the coefficients. Approach will be same. Approach will be same. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला becomes very difficult for such question. अब पिछला वाला भी क्या था? इट वॉज सिमेट्रिक। आपका अगर 8 पॉइंट्स है तो 8 पॉइंट्स हर जगह पे थे। अब क्योंकि x और y का कोइफिशिएंट चेंज हो गया, ये ग्राफ टिल्टेड बनेगा, टिल्टेड ऐसा, इंटरसेप्ट सेम नहीं होंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा आपका। यू कैन नॉट क्रिएट अ फॉर्मूला फॉर दिस। स्टार्ट वहीं से करो। x इज इक्वल टू 0, 3y mod is equal to 12, y mod is equal to 4, y is equal to ±4। y को 0 करो, 2x mod is equal to 12, x mod is equal to 6, x is equal to ±6। कैसा ग्राफ बनता है इनका? स्लैंट लाइन, तिरछा लाइन बनता है, स्लैंट लाइन।
सो ये शुरू होगा यहां से, दिस विल बी y का इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स, -4 यूनिट्स, x का विल बी 6 एंड -6। तो देखो x का इंटरसेप्ट दूर है। पिछला वाला जो ग्राफ था 8 -8 वाला, दैट वाज अ स्क्वायर। अब आपका रोम्बस है, दिस इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है आपका ग्राफ। आपको एरिया चाहिए तो एक ट्रायंगल का निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। ये जो ट्रायंगल है आपका, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे कितने ट्रायंगल हैं? 4 ट्रायंगल्स हैं, इसको कैंसिल कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा 48। अब इसका भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं अगर चाहें तो, अगर रटने पे आ गए तो बनाकर दे देंगे आपको फॉर्मूला। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए, ये बी, ये सी, तो इंटरसेप्ट तो मिल ही जाएगा हमें। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन इनसाइड? देखो ये लॉन्गेस्ट लेंथ है आपकी, ये दिस इज योर लॉन्गेस्ट लेंथ, which is in this case 12 units. How many integer points lie on the graph? देखो राइट साइड में, क्योंकि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, इट इज क्वाड्रेंट 1, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो जो इक्वेशन होगी, देखो जब मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है, इक्वेशन ओपन्स विदाउट अ चेंज। ये डिस्कस किया हमने सिंस फर्स्ट लेक्चर। मॉड के अंदर में पॉजिटिव है, 0 है, मॉडुलस डज नॉट चेंज। अब इसके इंटीजर कैसे निकालोगे? देखो x इज इक्वल टू 0 बना, y इज इक्वल टू 4 बना। अब x की वैल्यू 3 से बदलेगी तो y की वैल्यू 2 से। याद है ये सब इंटीग्रल सॉल्यूशन, पहला लेक्चर आपका यही था, अलजेब्रा का इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब x फिर 3 से बढ़ेगा तो y फिर 2 से घटेगा। तो देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स इस लाइन पे? इस लाइन पे देयर आर 3 पॉइंट्स। यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे, अच्छा ब्लैक तो वैसे नहीं दिखना, यहां पे आपका एक पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है और आखिरी में एक पॉइंट। अगर इस पे 3 पॉइंट है तो इस पे भी 3 पॉइंट्स होंगे। टोटल पॉइंट कितने हो गए? 3 + 3 + 2, देयर आर 8 पॉइंट्स। इनका फॉर्मूला नहीं बना पाओगे आप, इट विल नॉट बी इजी, इट विल नॉट बी पॉसिबल। अब इनसाइड वाले और डिफिकल्ट हो जाएंगे, अब ये मैन्युअली ही करने पड़ेंगे। x इज इक्वल टू 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के। A person like I can achieve this, a person like I can do this। मैं एक बार करके भी दिखाता हूं आपको, चलो मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको ये चीज, क्योंकि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे। कंप्लीट दिस सो फार, 3 पॉइंट कवर कर दिए मैंने। कमेंट डन। सर आज आप लोग थक गए होगे, काफी नए नए वेरिएशंस आ रहे हैं स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका 4th पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, तो मैं इसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैन्युअली आपको करना सिखा रहा हूं। व्हाट दैट मीन्स इज, आपको ये बताना है कि बाउंड्री को इंक्लूड करके इसके अंदर में कितने इंटीजर पॉइंट्स हैं। तो मैंने बिना ग्राफ के आपको ये सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक एक करके वेरिएबल की रेंज निकालो। जैसे मैंने ले लिया x इज इक्वल टू
0। मेरे पास वैल्यू आ गई 3 mod y लेस देन इक्वल टू 12, mod y लेस देन इक्वल टू 4, y बिटवीन 4 एंड -4। तो x इज इक्वल टू 0 करके मेरे पास 9 पॉइंट्स आए। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये जो लाइन है y एक्सिस, इस पे 9 पॉइंट्स आए मेरे पास। अब संभल के थोड़ा ध्यान से, मैंने x को लिया +-1, तो ये तो 1 बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, देखो ये 1 बन जाएगा। 2 into 1 plus 3y mod is less than equal to 12. 3y mod is less than equal to 10. Y mod is less than equal to 3.33. तो 3.33 के अंदर में कौन से पॉइंट आते हैं, 3 आता है। तो y का वैल्यू जो है इट इज बिटवीन 3 एंड -3। अब तो संभल के, y के 7 पॉइंट्स हैं, y के 7 पॉइंट्स हैं और x के 2 पॉइंट्स हैं, तो टोटल 14 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ये दो किसके लिए, ये दो x के लिए प्लस माइनस, और ये किसके लिए, y के लिए। अब मैं +-1 के बाद क्या करूंगा, +-2 +-3 +-4 +-6 तक जाएगा ये। x इज इक्वल टू +-2, जैसे वर्बली होगा अभी आपसे, देखो इसमें +-2 पुट करके कितना बन जाएगा, 4, 4 माइनस करके कितना बन जाएगा, 8। तो बेसिकली y मॉड इज लेस देन इक्वल टू 8/3, और 8/3 क्या होता है, 2.66, मतलब y की वैल्यू +2 से -2 तक जाएगी। मतलब y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 2 है, तो 10 पेयर्स। मैं x को लूंगा +-3। देखो इसमें अगर आप +-3 पुट करोगे, ये बन जाएगा 6, 6 माइनस होके बन जाएगा 6/3 बन जाएगा 2। तो y की वैल्यू बिटवीन +-2, x की 2 वैल्यू, y की 5 वैल्यू, हाउ मेनी पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। तो धीरे धीरे देखो ये डिटेल भी किया हमने दो जगहों पे, एक बार पैटर्न मिलना शुरू हुआ, वर्बली बनेगा। मैं ले रहा हूं x को +-4, ये हो गया +-4, मतलब ये हो गया 8, 8 माइनस होगा बन जाएगा 4, 4/3 बन जाएगा 1.3, मतलब y का वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1। तो y के 3 वैल्यू, x के 2 वैल्यू कितने हो गए, 6 पेयर्स हो गए। x का वैल्यू +-5, x का वैल्यू +-6, चेक कर लो। +-6 पुट करोगे तो y 0 बन जाएगा, +-5 पुट करो, देखो देखो ये +-5 पुट किया तो ये कितना बन गया, 10, 10 को माइनस क्या बन गया, 2, 2/3, 2/3 0.66, तो 0.6 से कम एक ही पॉइंट आएगा, y इज इक्वल टू 0, तो 2 पेयर हो गए। x इज इक्वल टू +-6, y इज इक्वल टू 0, 2 पेयर्स हो गए। तो कितने पॉइंट्स हुए आपके पास टोटल। थोड़ा पेशेंस चाहिए बेटा इस तरह के सवालों के लिए, थोड़े एडवांस क्वेश्चन हैं ये। तो यहां हो गए 9 पॉइंट्स, यहां हो गए 14 पॉइंट्स, यहां हो गए 10 पॉइंट्स, यहां हो गए 10 पॉइंट्स, यहां हो गए 6 पॉइंट्स, 2 और 2, तो हो गया 10, 20, 30, 30 एंड 23, 53 पॉइंट्स। ऐसा क्वेश्चन आई डोंट एक्सपेक्ट अभी रिसेंटली कहीं आएगा, बट अगर आता है तो 12 तक नहीं जाएगा बेटा, ये 5-6 तक रहेगा मैक्सिमम।
Guys, take your time, copy this down, comment done. Answer is 53. प्लस माइनस चेक कर लो, इज द प्लस माइनस वर्क्स. अब ना एक पिक PICK इनका सरनेम था, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पिक्स थ्योरम. इंटीजर पॉइंट्स आर गिवन बाय एरिया प्लस बाउंड्री बाय 2 प्लस 1. इसका एरिया कितना था? 48. इसके बाउंड्री पे कितने पॉइंट्स थे? 8 प्लस 1. अब बेटा आपको जहां ढूंढना है ढूंढ लो. मुझे आप बताओ कौन से मटेरियल में, कौन से कोचिंग में आपको पिक्स थ्योरम का फॉर्मूला मिलता है? ढूंढ के बताओ. ये जो भी आपने अचीव किया, कितने 15 स्टेप लगे मुझे, 12 स्टेप लगे, 53 इज माई आंसर. मैंने एक एक चीज वेरीफाई करी आपके लिए. ये देखो, दैट इज वाई कैट इज अ नॉलेज बेस्ड एग्जाम. जो इंसान बार बार कैट लिखता है, देता है, वो सोचेगा, वो हाथ पांव मारेगा कि यार इतना लंबा सॉल्यूशन है, कुछ और कर सकते हैं क्या, वैसा करेगा. जिसकी उम्र निकल गई है, वही चीज 10 बार पढ़ा रहे हैं, 10 क्वेश्चंस बना रहे हैं रोज के, बस वही करना है बोर्ड पे, वो इतना नहीं सोचेगा कि और क्या कर सकते हैं. ये ढूंढो, आप कहीं मिलता है आपको तो. इसका मैं डेरिवेशन करा सकता हूं आपको, पिक्स थ्योरम. हाँ, ये वाले इंटीजर पॉइंट क्या है? ये है इंक्लूडिंग बाउंड्री. अभी कल को आ गया नॉट इंक्लूडिंग बाउंड्री. अब इस सब की सिर्फ एक लिमिटेशन है, दिस इज नॉट इंक्लूडिंग बाउंड्री. इस सब की केवल एक रिक्वायरमेंट है. व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट? इट मस्ट बी क्रिएटेड विथ स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रक्चर कैसा भी हो, अगर स्ट्रक्चर आड़ा तिरछा भी होगा, हमें नहीं फर्क पड़ता. स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए, बाउंड्री पॉइंट गिनने आने चाहिए, आपको एरिया निकालने आना चाहिए. तो मैंने आपको मेहनत के थ्रू दोनों दिखा दिए, मैन्युअली भी करवा दिया, ये भी देख लिया. नहीं जाएगा बेटा, 12 तक नहीं जाएगा ना, क्योंकि इसका कोइफिशिएंट 2 है, तो ये 6 तक जाएगा ना. इसका कोइफिशिएंट ट्वाइस है, 2x, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जाएगी, प्लस माइनस 6. दो फॉर्मूले बेटा पिक्स के, दो फॉर्मूले, इंक्लूडिंग बाउंड्री, नॉट इंक्लूडिंग बाउंड्री. पहला वाला फॉर्मूला है, इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड है, इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड है, बाउंड्री पॉइंट्स. इसमें नॉट इंक्लूडिंग बाउंड्री.
ये माइनस है और ये प्लस है। ये हमने एरिया बेटा, हम एरिया यूज कर रहे हैं, एरिया हम पहले निकाल के बैठे ना, एरिया हमने पहले निकाल लिया है, एरिया वी ऑलरेडी हैव फाउंड आउट। एरिया प्लस बाउंड्री बाय 2 प्लस 1, एरिया माइनस बाउंड्री बाय 2 प्लस 1। So this is where we stop for today. Yeah. Good night, guys.